Hello students, in the previous lectures or from the last 3 to 4 lectures, we are studying about the posology. What is posology? We have already discussed, and what are the different factors which could affect the posology that we are in continuing on. So, when we talk about the factors which could affect the posology, before that I would like to give you a quick revision of the definition of posology. What is posology? It is a calculation of a dose of a particular drug which can produces a therapeutic action in a patient or in the body. So this is simply called as posology. So what are the different factors which could affect the posology? We have discussed earlier around 6 factors. In this today's lecture, we will be discussing more 3 factors which could affect posology. Number 1 is emotional factor. Number 2, presence of disease. Number 3, accumulation. Number 4, additive effect, synergism and antagonism. These are also the factors which could affect the posology directly or indirectly. For example, if we talk about emotional factor. Emotional factor का क्या मतलब है? Emotional factor means sometimes we are not going through any of the disease, but we want attention of our family members, attention of our relatives. So it is a psychic disorder. Okay, it is a psychological disorder कि when somebody feels alone. ये ज़्यादा केसेस कब होते हैं जब somebody faces so much of distress, so much of stress in their life, और मतलब वो बिल्कुल अकेला फील करते हैं, तब लोगों को लगता है, तब वहाँ पे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कॉज होते हैं, लोग डिप्रेशन में जाते हैं या उनको चाहिए होता है कि उनको अटेंशन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको अटेंशन दें. ठीक, तो इस फेज में भी posology affect करती है. Emotional factors are the major factor. Nowadays it is a major factor which is affecting the posology. For example, if a person is suffering from a long lasting disease, means उसका जो disease का record है वो बहुत ही old है. For example, a person is suffering from diabetes. Okay, तो अब इसमें हम females का example लेते हैं because females are more emotional and they want more attention than the males. So here I am not pointing out any of the gender, but this is the scientific talk what we are doing here. So when we talk about the emotional factor, in this emotional factor psychological disorders causes. For example, जो हमारी बीमारियां होती हैं, कभी कभी जब हम बहुत लंबी बीमारियां चलती हैं, फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज हो गया, हार्ट डिजीजेज हो गए, तो ये डिजीज तो हमारी पुरानी है ही, है ना. पुरानी डिजीज के साथ साथ अब क्या है, लोगों को क्या फील होने लगता है जब उनके साथ बहुत लंबी बीमारियां चलती हैं, ये उनको फील होने लगता है कि somebody should be there who can see me, somebody should be there who can care about me. So these are the things, these are the emotions which a person want from others. ठीक, तो in that cases what we do placebo, means a dummy drug we used to provide to a patient, and by which they will feel that they are now the people are giving attention to them and they are caring about them. So in this treatment, in this way, it affects the posology of the old disease. Old disease में जितने भी हमारे drugs चलते हैं, जितने भी doses form हमारे मेडिकेशन हमारा चल रहा है, तो उसको अफेक्ट ना करे, इसलिए इमोशंस पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है. इमोशंस पे कंट्रोल करने के लिए हम एज सच हमारे पास ऐसा कोई मेडिकेशन नहीं है, या पर्सन जो है वो इतना प्रोन नहीं है जिसको हम मेडिकेशन प्रोवाइड करें, तो हम उनके लिए प्लेसिबो प्रोवाइड कराते हैं. प्लेसिबो क्या होते हैं? इट इज रिजेंबल टू एक्चुअल मेडिकमेंट. द पेशेंट विल फील कि उसको कोई मेडिकेशन प्रोवाइड हो रहा है जिससे उसके इमोशंस कंट्रोल हो रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता. बस उनको प्लेसिबो में डमी मेडिकेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे उनके इमोशंस बैलेंस होने लगे. ठीक, तो ये बेसिकली हमारे हार्मोन्स पे डिपेंड होता है. इमोशनल हार्मोन्स होते हैं जो कि इमोशंस को कंट्रोल करते हैं या उनको अनकंट्रोल करते हैं. तो ये सारी चीज़ें हम प्लेसिबो के थ्रू
बैलेंस में लाते हैं. So these are the emotional factors which can causes the posology. Then another factor if we will talk about, that is the presence of disease. Presence of disease का क्या मतलब है? For example, if any of the old disease is present, for example, old disease like diabetes, heart diseases and etc. Blood pressure disease like hypertension. So these are the diseases which could present from a longer duration of a time और वो उनके old patients हैं, मतलब ऐसी diseases के जो old patients हैं जो कैरी कर रहे हैं किसी disease को बहुत लंबे टाइम से. तो अब उसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स उनको फीवर आता है बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द वेदर एंड ऑल. तो व्हाट द मेडिकेशन दे आर टेकिंग, इट इज गेटिंग एब्जॉर्ब्ड, डिस्ट्रीब्यूट, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीट, है ना, एंड एक्सक्रीटेड फ्रॉम द किडनी. बट समटाइम्स व्हाट हैपन, जब कोई भी पर्सन लंबे समय से मेडिकेशन ले रहा है तो कहीं ना कहीं उनकी किडनीज पे असर पड़ता है, अफेक्ट होती हैं किडनीज. तो अब मान लीजिए किसी डायबिटिक पेशेंट है, मतलब लंबे टाइम से उनको डायबिटीज है, तो डायबिटीज में उनको कुछ दिनों के बाद फीवर आ जाता है. ठीक, तो फीवर आ गया, तो फीवर में जब हम एंटीपायरेटिक्स देते हैं किसी भी पेशेंट को, जब हमने एंटीपायरेटिक्स पेशेंट को दिया है तो वहाँ पे किडनीज जो हैं वो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फ्री रेडिकल्स हमारा कोई भी बॉडी पार्ट ठीक से काम नहीं कर पाएगा, तो किडनी पे हमारा ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. एंटीपायरेटिक्स जो है वो नॉर्मली जिस तरह से एक्सक्रीशन कॉज हो सकता है एक नॉर्मल पेशेंट में, फीवर पेशेंट में, वो उस तरह से नॉर्मल फंक्शन वहाँ पे प्ले नहीं कर पाएंगे किडनीज. अब इनके साथ साथ मान लीजिए हम उनको क्या दे दें, स्ट्रेप्टोमाइसिन दे देते हैं. स्ट्रेप्टोमाइसिन देने से किडनीज जो हैं डैमेज होने का खतरा रहता है. तो हमें ये पता होना चाहिए कि जिसका भी हम डोज प्रिपेयर कर रहे हैं, मींस जिस भी पेशेंट को हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, उसका कोई पुराना डिजीज रिकॉर्ड या उनका कोई भी डिजीज ट्रैक रिकॉर्ड तो नहीं है, जो कि उनका मेडिकेशन जो है, जिनका मेडिकेशंस लॉन्ग लास्टिंग टाइम से चल रहा है. तो हमें इस चीज पे भी ध्यान देना है. तो प्रेजेंस ऑफ डिजीजेस also affect the posology. Then if we will talk about accumulation में क्या होता है, हमारा जो ये फार्माकोकाइनेटिकल फैक्टर्स हैं. What are the pharmacokinetic factors? That are absorption, distribution, metabolism and excretion. ठीक, these are the 4 factors on which the pharmacokinetics depend. ये 4 factors हैं जिन पे pharmacokinetics of a body depend करती है. तो मान लीजिए absorption तेज हो रहा है, distribution भी बहुत तेज हो रहा है, metabolism भी बहुत तेज हो रहा है, but excretion slow rate में होता है. ठीक, जरूरी नहीं है कि एक नॉर्मल पेशेंट है या डिजीज्ड पेशेंट है. डिजीज पेशेंट में तो खैर ये चारों ही फैक्टर्स डिसबैलेंस रहते हैं, बट ये जरूरी नहीं है कि नॉर्मल जो पर्सन है उसमें एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन एक ही रेट पे हो. ठीक, तो समटाइम्स व्हाट हैपन, हमें पता नहीं चलता कि हमारा कौन सा फार्माकोकाइनेटिक फैक्टर डिसबैलेंस्ड है या वो एक साथ रेट पे नहीं चलते हैं. तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम उनको डिजिटालिस दिया या कोई भी किसी भी टाइप का कोई भी ड्रग देते हैं, तो ड्रग देने में क्या है, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन तो तेज हो रहा है, ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन का रेट भी ठीक है, मेटाबॉलिज्म भी अच्छे से हो रहा है, बट एक्सक्रीशन रेट इज वेरी स्लो. तो एक्सक्रीशन रेट स्लो है तो क्या होने लगेगा, इट विल रिजल्ट इन द एक्यूमुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर ड्रग इन द बॉडी. और अगर हम उस ड्रग को कंटिन्यू मेडिकेट करते जाएं तो क्या होगा, मेडिकेशन जो है आपका वो किडनी से एक्सक्रीट ही नहीं हो रहा है, और अगर हो भी रहा है तो बहुत ही स्लो रेट में हो रहा है. ठीक, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, इट कॉजेस टॉक्सिसिटी एंड इट कुड डैमेज टू एनी ऑफ द बॉडी पार्ट. ठीक, किडनीज पे ज्यादा इफेक्ट करता है, बट इट कुड अफेक्ट द एनी ऑफ द बॉडी पार्ट. एक्यूमुलेशन अगर कहीं भी किसी भी ड्रग का हो रहा है तो इट इज वेरी टॉक्सिक इन नेचर. Naturally it is toxic and it produces the entire body toxicity, and then it may leads to any of the harmful effect. So before prescribing the drug, हमें through the checkups, medical checkups, we should be knowing कि पहला तो हमारे पास किसी भी disease का कोई presence ना हो, और accumulation तो body में नहीं होगा. accumulation नहीं होगा वो कैसे पता लगेगा, through the blood reports. अगर हम जो भी ब्लड रिपोर्ट्स कराते हैं डॉक्टर्स, उनके थ्रू पता लग जाएगा. अदरवाइज अगर कोई प्रेजेंस ऑफ डिजीज है तो प्रेजेंस ऑफ डिजीज मतलब जब कहीं ना कहीं एक्सक्रीशन और मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम आएगा,
तो उनको हम उस तरह से डोजेस को प्रिस्क्राइब करते हैं, उसका डोज का कैलकुलेशन किया जाता है. So this is the factors which could affect the accumulation. Then coming towards the additive effect, synergism and antagonism. Additive effect में क्या है? Combination of two drugs. ध्यान से सुनिएगा. Additive effect and synergism में difference है. Additive effect का क्या मतलब है? जब हमने एक मेडिकेशन दिया और उसके साथ दूसरा मेडिकेशन प्रोवाइड किया. एग्जाम्पल, ब्रोंकियल अस्थमा में हम एफेड्रीन दें और एफेड्रीन के साथ एमाइनोफिलीन दे देते हैं. ठीक, एफेड्रीन प्लस एमाइनोफिलीन का क्या है, अगर ये हम कॉम्बिनेशन में दोनों ड्रग्स देते हैं तो ब्रोंकियल अस्थमा में इसका जो इफेक्ट है वो बहुत अच्छा होता है. इट इज वेरी इफेक्टिव, मतलब इट इज अ वेरी इफेक्टिव कॉम्बिनेशन which causes additive effect. जबकि synergism में क्या है, increases the action of first drug. For example, अगर हम प्रोकेन लेते हैं, ठीक, प्रोकेन अगर हम लेते हैं, after प्रोकेन if we induce adrenaline, if we administer adrenaline, तो एड्रेनलिन की वजह से प्रोकेन का एक्शन इंक्रीज हो जाएगा. मतलब किसी दूसरे ड्रग की वजह से किसी पहले ड्रग का एक्शन इंक्रीज होने को सिनर्जिज्म बोलते हैं. एडिटिव इफेक्ट में ऐसा नहीं है. एडिटिव इफेक्ट में दूसरा कोई भी अगर हम कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करा रहे हैं तो वो इफेक्ट को इंक्रीज कर रहा है, वेयर एज सिनर्जिज्म में फर्स्ट ड्रग के इफेक्ट को इंक्रीज कर रही है कोई दूसरी ड्रग. सो दिस इज कॉल्ड द सिनर्जिज्म. तो सिनर्जिज्म आल्सो अफेक्ट्स द फैक्टर, आल्सो अफेक्ट्स द पोसोलॉजी in the calculation of dose of a drug. Then coming towards the antagonism. Antagonism में क्या है? Action of a drug opposed by one drug. जो example जो यहाँ synergism में बताया है, just opposite, just vice versa. Okay? it क्या होगा? Decreases the action of first drug. For example, हमने पहला medication लिया, उसके साथ दूसरा medication लिया. दूसरा medication फर्स्ट ड्रग के एक्शन को रिड्यूस कर देगा, अपोज कर देगा. So that's called antagonism. So antagonism also affects the posology. So these are the 6 factors we have studied in this lecture. Another lecture, in the another lecture also we will be discussing the factors affecting posology. So thank you very much.